Thank you, ma'am. नहीं, अच्छा, चलो। मैं टेस्ट करता हूँ सर, जस्ट मैं आगे से बैठा हूँ। ठीक है सर। Question mark is on the. So coming to the ये 6 systems. What are the 6 systems? Abolition of intermediaries, then उसके बाद tenancy reforms, sealing, हर एक के positives, हर एक के negatives, then reorganization, consolidation, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, उसमें कंसोलिडेशन आएगा, उसमें कोऑपरेटिव्स आएंगे, एंड लास्टली मैंने कोऑपरेटिव अलग से दिया है बिकॉज एज इट इज वाज वंस पास्ट ईयर क्वेश्चन, उसमें दिया था कोऑपरेटिव्स. फाइन. नाउ जमींदारी फर्स्ट, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, this was done to stop, this was done to stop the exploitation, done to stop the exploitation of peasants, exploitation of peasants, and to restore tiller rights, tillers rights over the land, tillers right over the land. मतलब कोई बीच में नहीं, जो कर रहा है, जो बो रहा है, उसी की जमीन है. दिस इज व्हाई इट इज नोन एज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, एजेंट्स, टीलर्स राइट ओवर द लैंड. ओवर 2,60,000 zamindars were abolished. 2,60,000 zamindars were abolished. नेक्स्ट, लैंड टेन्योर. प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले स्टेट टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम वाज, abolition of intermediaries was Madras in 1948. Madras was a state, याद रखना. नहीं, स्टेट, हाँ, उसी से हुआ था. फिल्म्स के लिए याद रखो. टेनेंसी, रही, बट जमींदारी सिस्टम निकाला गया. कितनी जमीन रही? जितनी सीलिंग ने अलाउ की. कितनी सीलिंग ने अलाउ की? अगर ड्राई लैंड है तो 26 एकड़, स्टेट बाय स्टेट. अगर सिंगल क्रॉप है तो 18 एकड़, इरिगेटेड विद सिंगल क्रॉप, इरिगेटेड विद 2 क्रॉप्स 12 एकड़. बट उसमें एक्सेप्शंस थे बहुत सारे. टेनेंसी राइट्स, rural India had 3 kinds of tenants. Rural India had 3 kinds of tenants. Permanent or occupancy tenants. Temporary or non-occupancy tenants. They do not occupy the land, so temporary or non-occupancy tenants. And lastly, subtenants.
Lastly, subtenants. What are permanent tenants? They have permanent rights over the land. Generation to generation उन्हीं की family वो land करेगी. सिर्फ थोड़ा 50% of the share should have been given to the owners. Fine. The subtenants and temporary tenants, subtenants and temporary tenants had no right to cultivate the land permanently, had no permanent rights to cultivate the land. Full stop. Their income tax was high, generally 50%. अंडरस्टैंडिंग कौन सा इनकम टैक्स? जितना वो कमा रहे हैं. देयर इनकम टैक्स वाज हाई, जनरली 50%. And they could be removed from the land. They could be removed from the land on minor pretext. On minor pretext. कोई भी माइनर कंडीशन पे, माइनर प्रिटेक्स्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीजेस वेर ओरल. Because most of the leases were oral. Leases were oral. Hence, such tenants did not. Take any incentive to modernize the land or agriculture. To modernize the land or agriculture. And were highly exploited. Highly exploited. Therefore, tenancy reforms included, just bracket में लिखना, tenancy reforms included. अब तो मुझे लगता है you must have got an fair idea of land reforms में क्या क्या होने वाला है. एक तो जमींदार हटेगा, tenancy reforms में उनका एक rent fixed हो जाएगा कि इतना इतना देंगे वो. So tenancy reforms included 1. Security of the tenure. You should know abolition of the intermediaries. में land reforms में abolition of the intermediaries has been highly successful in India. कुछ कुछ जगह नहीं है, जैसे बिहार में जो हुआ था, यूपी में जो हुआ था. Where it happened, killing of people, tribals, यूपी. क्योंकि फॉरेस्ट लैंड हमेशा कम्युनिटी ओनरशिप है, जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था. शिफ्टिंग कल्टिवेशन जहां होगा, दैट इज द फॉरेस्ट लैंड, वहां पे देयर इज अ कम्युनिटी ओनरशिप. इट डज नॉट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन. बट बाकी के जगह इट हैज बीन मोर और लेस सक्सेसफुल. इट हैज बीन सक्सेसफुल इन द स्टेट्स ऑफ बंगाल एंड केरला. व्हाई? बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट रेजिम. Security of tenure, fixation of fair rent, and third, grant of ownership rights. परमानेंट टेनेंट्स 100 सालों से वही जमीन बो रहे हैं, फिर भी ओनरशिप नहीं है. सो ऐसे जगह ग्रांट ऑफ ओनरशिप rights. Grant of ownership rights. Understanding? Next, ceiling on land holdings. Ceiling on land holdings. The ceiling on land holdings had two rationality. One, economic rationality. First, economic rationality.
small farms, economic rationality, small farms provide more employment opportunities, right? लेबर, स्मॉल फार्म्स है तो लेबर ज़्यादा होगा, बिग फार्म्स है तो मशीन्स ज़्यादा होंगी. सो देखो यहाँ पे ज्योग्राफी इटसेल्फ इज एट क्रॉस रोड. अगर कंट्री पुअर है तो देयर शुड नॉट बी मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बट वंस द कंट्री बिकम्स रिच, एवरीवन हैज लैंड, देन देयर शुड बी कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स एंड देयर शुड बी मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. दोनों राइट है. It depends upon where you are. अब हमारे यहाँ पे where we have disguised employment and there are no employment opportunities. Now you are doing the mechanization of agriculture. That will be wrong. But कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी mechanization of agriculture की. So small farms provide more employment opportunities and they require less capital. Less capital. And second, social rationality. Social rationality in a poor country like India, in a poor country like India, it is unjust to allow small number of people to hold. It is unjust to allow small number of people to hold large amount of land. Large amount of land. Therefore, the ceiling on the land holdings was based with two objectives. Was based with two objectives. Ceiling on the land holdings was based with two objectives. One, acquisition, fixation of land ceiling, fixation of land, fixation of land ceiling. As shown in the table below. As shown in the table below. देखो हर एक स्टेट का अलग होगा, हमें सिर्फ नेशनल सजेशन करना पड़ेगा. All this is in hectares. मतलब जहां इरिगेटेड विथ टू क्रॉप्स है, there you can have 10 acres to 14 acres of land. जहाँ irrigated with one crop है वहाँ पे you can have 20 acres of land, and जहाँ पे dry land है you can be the owner of 40 acres of land. Now if you are applying for creamy layer, आज यही criteria है. If you are having irrigated land more than 14 acres, you come in creamy layer. तो फिर even if your income is less than 8 lakhs, you don't get OBC certificate. Neither EWS certificate. यही क्राइटेरिया EWS के लिए भी है, यही क्राइटेरिया क्रीमी लेयर के, OBC के क्रीमी लेयर के लिए भी है. EWS के लिए प्रॉब्लम ये है कि सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है.
बट ओबीसी में क्राइटेरिया विद 2 क्रॉप्स, क्राइटेरिया विद 1 क्रॉप एंड ड्राई लैंड का अलग अलग क्राइटेरिया है। SC ST में क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं होता। प्रमोशन क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज SC and ST इज ऑन सोशल बैकवर्डनेस नॉट ऑन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था गवर्नमेंट से कि इवन इफ यू ब्रिंग द क्रीमी लेयर इट विल नॉट स्टैंड इन द कोर्ट, थोड़ा इनडायरेक्टली, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सोशल बैकवर्डनेस। ओपन कास्ट कैटेगरी पर्सन इवन इफ इज वेरी वेरी रिच, इवन इफ द SC ST इज वेरी रिच, वो उनसे शादी नहीं करते, इसको हम कहेंगे सोशल बैकवर्डनेस। वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही नहीं है, वहाँ पे कास्ट का क्राइटेरिया है। ओबीसी क्या है? पॉलिटिकल गेम है ओबीसी, तो इसलिए इट इज़ एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। अंडरस्टैंडिंग? राजपूत्स विल मैरी कुर्मीज, कुर्मीज कैन मैरी राजपूत्स if they are belonging to the same economic strata. Getting it? जाट्स में और राजपूत्स में इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, सेम सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, बट दैट इज नॉट द केस विथ SC and ST। घर वाले ऑनर किलिंग हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन फैमिली टू फैमिली ऑल्सो, होता है। इट डिपेंड्स अपॉन फैमिली टू फैमिली, तुम टेंशन मत लेना अगर कुछ ऐसा केस है तो। हाँ, घोड़ा नहीं चढ़ने देते हैं, बारात निकलने नहीं देते SC ST की। Yes. That is why what Mayawati did, Mayawati आते ही स्टैचूज बनाने लग गई। Why only Brahmins के स्टैचूज? There should be the statues of even oppressed classes. वो खटका। हाथी इज अ सिंबल। उसका सिंबल है ना पार्टी का, BSP का, तो पार्टी किसकी है? ऑप्रेस्ड क्लासेस की। अपने भी बनवाए हैं। बोला था कि ये हाथी हमारे सिंबल के हाथी से डिफरेंट, बट एक स्कूल की डिबेट चल रही थी, तो उसमें एक बच्चे ने जो डिफेंड किया था इसको अम्बेडकर वाला को, उसने इतना अच्छा डिफेंड किया था कि इवन मायावती ने कांटेक्ट किया और उसको बोला कि मेरे लिए स्पीच और 9th क्लास का बच्चा था, उसने डिफेंड इस पॉइंट पे किया कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, अब हम लोग हद से जाते अम्बेडकर पाए कि ये हमारा, और ये कास्ट पे पूरा बोल के उसने, तो मायावती ने उसको पर्सनली बुलाया कि हम आपको डील करेंगे, हम आपका पूरा खर्चा देंगे। ये है एक सिंबल होता है इंडिया में, कलेक्टर का बंगलो एक सिंबल है, विक्टोरिया टर्मिनस एक सिंबल है, ताजमहल एक सिंबल है। सिंबलिज्म जो, सो देयर इज नो सिंबलिज्म ऑफ गांधी, एक सिंबल है हर जगह कांग्रेस का। कमल का बनाने की क्या जरूरत है? बनाने की जरूरत ही क्या है? कमल मंदिर बन रहा है, कमल बनाने की क्या जरूरत है? अब तो पासपोर्ट भी आ गया कमल, रोटेशन बेसिस पे है। केंद्रीय विद्यालय के वो बेल्ट में कमल का फुल टाइम राइजिंग सन था, तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उसने बोला ये बीजेपी का प्रमोशन होगा, तो उसने लोगो ही चेंज कर दिया, बट वो तो कमल तो राष्ट्रीय राष्ट्र सिंबलिज्म का मीनिंग समझो, इसीलिए कनॉट प्लेस स्टेशन का नाम है राजू चौक। कोई है राजीव गांधी से कोई रिलेशन? फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो मेन स्टेशन है उसका नाम है राजू चौक। अंडरस्टैंडिंग? ये है सिंबलिज्म। सो हमेशा याद रहेगा कौन राजू चौक, तो आज से 20 साल बाद भी कौन राजू गांधी किस पार्टी का था? कांग्रेस। उसने क्या क्या काम किया? अंडरस्टैंडिंग? इसलिए ये स्कीम्स, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन, आते ही पहले स्कीम का नाम चेंज कर देते हैं। हज़ारों साल तक वो प्रूव रहता है,
हमेशा सिंबॉलिज्म इज द बिगेस्ट वे ऑफ, तो व्हाई ब्रिटिशर्स यूज टू मेक कलेक्टर एंड एसपी का ऑफिस सो बिग या घर सो बिग, सो ताकि पता चले कि मैं, वो सरकार है, मैं जनता हूं. अंडरस्टैंडिंग? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजराती प्राइड, गुजराती प्राइड इतना बड़ा सिंबॉलिज्म का गेम है सब. So next point, the states differed, while fixing the actual land ceilings, but it was more or less nearer to the national guidelines. It was more or less nearer to the national guidelines. National guidelines. Next, consolidation of land holdings. Consolidation of the land holdings. Subdivision and fragmentation of land holdings. Subdivision and fragmentation of land holdings have several disadvantages such as wastage of land. ये सब आप मैप में ही बना सकते हो. एक ही आंसर अगर है तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, एक सर्कल बना दिया, एंड डिसएडवांटेजेस. वेस्टेज ऑफ द लैंड have several disadvantages such as wastage of the land. Second, difficulty in management. एक खेत आपका एक जगह है, दूसरा खेत दूसरी जगह है. difficulty in management. Difficulty in adoption of new technology. Difficulty in adoption of new technology. Disputes over boundaries or boundary disputes. And disguised unemployment. How disguised unemployment? Fragmentation से. दो भाई है, लैंड छोटी है, पर एक जा रहा है एक खेत में, दूसरा जा रहा है दूसरे खेत में. अगर एक ही लैंड होती तो वन वुड हैव गॉन टू फैक्ट्री, द अदर वुड हैव लुक्ड एट द फार्मिंग. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. See, I don't know how is your social strata, but किसी भी इसमें देखना, अगर तीन भाई होंगे तो दो पढ़े लिखे होंगे और जो एल्डेस्ट होगा वो आज भी खेती देख रहा होगा. फाइन. क्यों? बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच्ड टू द लैंड. गेटिंग इट? जो छोटा भाई है सबसे, वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है या फिर सबसे ज़्यादा नालायक होता है, बिकॉज उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिला होता है. सो ही हैज़ गॉट मैक्सिमम मनी. इफ ही इज़ गुड ही विल स्टडी एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली. अनरिटन रूल है कि जब शादी है, स्पेशली लड़कियों की, तो तीनों भाई पैसे देंगे इक्वल अमाउंट में, किसी की भी हो. दिस इज हाउ इंडियन सोशल स्ट्रेटा इज बिल्ट, सोशल स्ट्रक्चर इज बिल्ट. दैट इज वाई वी से कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था हमारे इसमें इतना स्ट्रांग. while it has several advantages, while consolidation has several advantages, such as one, large scale cultivation, bringing down the cost of cultivation, saving time and labor of the owner,
saving time and labor of the owner. And proper economic utilization of agriculture inputs. Proper economic utilization of the agricultural inputs. See, you can use this even in the first part of the answer. क्या क्या benefit होने वाले? Agriculture inputs. So why can we say land reforms have been successful in India? Partly. एक ही land reform successful है, that is abolition of zamindari system. Otherwise land reform successful होते तो इतना ज़्यादा वो data marginal land holdings नहीं होती. Fine. So tell me why land reforms have failed or they have not met with that much success. Political. Distributed बेनामी transactions or loopholes in the laws. क्या? वो खुद जमींदार थे या फिर वो खुद तहसीलदार थे या फिर वो खुद ब्यूरोक्रेट्स थे. जो जमींदार थे वही खुद ब्यूरोक्रेट्स थे. सो देयर वाज लार्ज स्केल ब्यूरोक्रेटिक करप्शन. एक तो ये एक पॉइंट है. बट और एक showing fertile land means no proper land records keeping was there. So many times there are two things. एक तो there was, हमें एक एक पॉइंट में लिखना पड़ेगा. एक तो there were lot of exemptions कि religious places को allowed नहीं है, इसको allowed नहीं है. So there were lot of exemptions and people showed it. Secondly, there was a definition known as personal cultivation कि anything if you are using for personal cultivation you can keep large amount of land. अब लोगों ने दिखा दिया कि 100 एकड़ लैंड है बट मेरे पर्सनल कल्टीवेशन के लिए. अंडरस्टैंडिंग? इनिशियली द लैंड वाज बेस्ड ऑन द सीलिंग वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली. मींस जो मैंने आपको दिए है दैट 5 एकड़ ऑफ लैंड टू 1 पर्सन. सो अगर आपके एक वाइफ है, सो देयर आर 2 पीपल, हस्बैंड वाइफ, एंड इफ दे आर हैविंग more than 4-5 children, so obviously 5 acres, 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 and बचने के लिए 1 more marriage. Land reforms ceiling से बचने के लिए there are numerous cases in which people have married more than once, so that more number of children and more number of land remains in the family. और जो ceiling में land दी गई थी extra to the other people, there was mostly kharab land, waste land. Understanding? Mostly waste land was given. Yeah, many people became charitable trust. So you see royal families जो है इंडिया की, whether it is गायकवाड्स, whether it is सिंधियास, उनके चैरिटेबल ट्रस्ट है. उनके नाम पे कुछ नहीं है ज़मीन, सब ज़मीन है चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे. सोनिया गांधी का एनुअल इनकम कितना है? Yes, and her annual income is? नहीं, declared. She has just one alto. She has just one alto. So ये है the problems. बाकी सब जो ओनर है वो राजीव गांधी ट्रस्ट ओनर है. Whether it is Prado, whether it is Mercedes, whether it is aircraft, it is owned by trust. Understanding? So ये है problems of the land reform. So why land reforms failed? First point, too much publicity, too much advance publicity, but delay in implementation. Too much advance publicity but delay in implementation. Advance publicity
allowed the land owners or zamindars allowed the landowners or zamindars to make necessary adjustments. To make necessary adjustments. To make necessary adjustment. See, ये है declared income. UPA chairperson has 60,000 bank deposits, 16.5 lakh, 9 lakh, 1.9 lakh shares and 24 lakh worth of investments in mutual fund. राहुल गांधी का ढूंढना पड़ेगा, बट कैन यू इमेजिन 60,000 एज मूवेबल एसेट्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ ओनली 16.5 lakhs. उससे तो कहीं ज़्यादा फिर शुभ्रा मैम का होगा बैंक डिपॉजिट्स डिक्लेयर्ड. सो दिस इज व्हाट इज फुलिंग द पीपल. नेसेसरी एडजस्टमेंट्स. स्विस बैंक काउंट नहीं होता. शायद डिक्लेयर्ड ही नहीं है या डिक्लेयर्ड है. 1.2 CR. अगर आपने आपका रहने वाला घर और 2-3 जो प्लॉट है, हर एक का एसेट्स यहाँ पे 1.2 CR होगा ही. राइट. सो यू सी मीन्स वी आर रिचर देन नरेंद्र मोदी. उनका रीजन ये था कि मुझे सब कुछ फ्री का मिलता है, सब कुछ, तो आई ऑल माय सेविंग्स और गिफ्ट वो अपनी इनकम से करते हैं. मुझे so, सब छुपाया जाता है. टेक्निकली नहीं. So next, there were lot of exceptions in the laws. For example, plantation agriculture, land under plantation agriculture, comma, land under educational and religious trust, or for commercial non-agricultural use was exempted. And therefore these loopholes were utilized by zamindars. इसलिए वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि कैश क्रॉप्स ज़्यादा लेने लग गए थे ड्यू टू लैंड सेलिंग्स. यस, बिकॉज कोई भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में लैंड सेलिंग डिड नॉट अप्लाई. फाइन. या दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट हो, एक्सेट्रा हो. अंडरस्टैंडिंग. किसके पास है? हो सकता है, हाँ, यस है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है. हाँ, तो रिलीजियस ट्रस्ट है ना सबसे ज़्यादा. नहीं, पूरे इंडिया में प्रॉपर्टीज विच बिलोंग्स टू द मुगल पीरियड, मुस्लिम्स. सो ऐसे उसको पूरा उसको फंड करती थी ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, तब उसका नाम था हुसैनाबाद करके. जैसे इन्होंने नाम किंग जॉर्ज किया, इन्होंने अपना फंडिंग बंद कर दी और पूरा हॉस्पिटल खोला, तो उनको नाम फिर से वो चेंज करना पड़ा. तो ऑब्वियस है, तो वो सुन्नी वक्फ बोर्ड. क्यों किंग जॉर्ज रखना है नाम जब फंडिंग आ रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड से? तो दे आर राइट. सारी मेंटेनेंस सब कुछ रिलीजियस
So see, this is not wrong. Is England government sponsoring you? So why you are keeping King George? Who is sponsoring you? Oh. Next is even the family definition. Even the family definition was exploited because ceiling was applicable to family members. Ceiling was applicable to family of 5 members. 5 members. And each extra person was eligible for more land. मतलब अगर 6 पर्सन है तो each extra person was eligible for more land. This gave rise to unsocial practices. This gave rise to unsocial practices such as polygamy, etc. Unsocial practices such as polygamy, etc. Polygamy, etc. मतलब जो मैंने क्राइटेरिया दिया था वो 5 मेंबर के लिए था. नहीं, पूरी एक फैमिली को यू कैन हैव XYZ नंबर ऑफ लैंड. फिर जितना एक मेंबर बढ़ गया उसको आज 5 हेक्टर मिलेगा. 2 मेंबर बढ़ गए उसको और 5 10 हेक्टर मिलेंगे. सो इफ यू आर अ फैमिली ऑफ 7 चिल्ड्रन, इफ यू आर हैविंग 7 चिल्ड्रन, तो कितने मेंबर हो गए? 7 + 2 9 मेंबर्स ऑफ द फैमिली. सो 5 मेंबर के हिसाब से यू कैन कीप 23 हेक्टर्स ऑफ द लैंड. बट कितने मेंबर है? 4. सो +5 + 5 + 5 + 5 43 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड. सो कैसे हो सकते हैं 5 मेंबर्स? पहले ही बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की कि हम लैंड रिफॉर्म्स करने वाले हैं. 51 में पब्लिसिटी की, इम्प्लीमेंट किया सीलिंग 72 में. तब तक दूसरी शादी, तीसरी शादी और बच्चे. इलीगल. डिवोर्स करके तो कर सकते हो ना. डिवोर्स करके तो वाइफ को कंपनसेशन और चाइल्ड को देना ही पड़ता है कंपनसेशन. डिवोर्स करने के बाद यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ मनी. सो यू डिवोर्स फर्स्ट वाइफ, मैरिड सेकंड वाइफ. ये इंटरनल एडजस्टमेंट था कि हम सिर्फ लैंड रखने के लिए शादी कर रहे हैं, आपको इतना इतना हिस्सा मिलेगा. यू डिवोर्स सेकंड वाइफ, मैरिड थर्ड वाइफ. इंटरनल एडजस्टमेंट्स, हैड थर्ड वाइफ. अंडरस्टैंडिंग? इसलिए तो आज इतने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है सौतेले भाई और बहनों के बीच. लैंड सीलिंग की देने हो. फाइन. सो नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी किसकी? सगे भाई की या सौतेले भाई की? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली प्रॉपर्टी. सौतेले भाई को सिर्फ इसके लिए किया गया सो दैट द प्रॉपर्टी रिमेन्स इन द फैमिली. बट नाउ ही इज आस्किंग फॉर द रिटर्न्स, इक्वल शेयर. नेक्स्ट, there was a loose definition of personal cultivation. There was loose definition of personal cultivation. Personal cultivation कि मैं खुद के लिए कितनी खेती कर रहा हूं. पर्सनल कल्टीवेशन. पर्सनल कल्टीवेशन के लिए लैंड अलाउ की तो क्या हुआ? पर्सन इज सेइंग 1000 किलोमीटर्स अपार्ट बट स्टिल ही इज सेइंग आई एम यूजिंग दैट लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन. तो एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म बढ़ गया. अंडरस्टैंडिंग? दिस अलाउड a land to be classified as land for personal cultivation. This allowed land to be classified for personal cultivation even sitting at a distance of more than 200 miles.
even sitting at a distance for more than 200 miles. And याद रखना 400 किलोमीटर in 1970s was big thing. आज कुछ नहीं लगता because of planes, trains. उस समय बहुत बड़ी बात थी. 200 miles. उस समय एक ही गाड़ी थी महिंद्रा की बड़ी, जो घाट से पहले रोकनी पड़ती थी ठंडी होने के लिए, पानी डालना पड़ता था. सो 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मतलब 12 घंटे लगते थे. आज लगते हैं 4-5 घंटे. अंडरस्टैंडिंग? टेक्नोलॉजी वॉज नॉट देयर. नेक्स्ट, most of the laws granting ownership to the tenants, सीलिंग के 2 पॉइंट हमने लिखे, जमींदारी सिस्टम सक्सेसफुल हुआ लिखा. नाउ टेनेंसी रिफॉर्म्स. मोस्ट ऑफ द लॉज ग्रांटिंग ओनरशिप राइट्स टू द tenants were optional in nature. कंपल्सरी नहीं किया, अगर देना है तो दो. ऑप्शनल इन नेचर. Thus the tenants had to move to courts, which they hesitated due to cost and the fear of landlords. पुरानी पिक्चर्स देखो कोई भी, लैंडलॉर्ड, जमींदार वॉज द बिगेस्ट दिस थिंग. जैसे आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट विलन इज इंटरनेशनल टेररिस्ट, पहले जमींदार था विलन. फियर ऑफ लैंडलॉर्ड्स ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड द फियर ऑफ लैंडलॉर्ड्स. हाई कॉस्ट किसका? कोर्ट का. नेक्स्ट, मैलाफाइड ट्रांसफर ऑफ द लैंड और बेनामी ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट है बेनामी ट्रांजैक्शंस. बेनामी ट्रांजैक्शंस. यू नो हाउ हवाला ऑपरेट्स? कैसे? Yes. Hawala is, suppose I want to transfer 1 crore rupees to him and he is in maybe South India or in USA. I will give it to a person somewhere in Delhi. Fine. Then he will give me a 10 rupee ka note. 10 rupee ka note ka number I will tell you to him. And he will get it from a person after telling the code. कि हाँ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द कोड ये है 10 रुपये के नोट का कोड, या कभी 10 रुपया दिखा गया, एंड ही विल गेट 1 करोड़ रुपीज. नो ट्रांजैक्शन का दिस थिंग, नो रिकॉर्ड्स कि 1 करोड़ रुपया हैज़ बिन ट्रांसफर्ड. 1 करोड़ तो बहुत कम अमाउंट है. फाइन, बिकॉज दे जनरली टेक 100 रुपीज़ पर लैख. इफ दे ट्रांसफर 1 लाख तो उसका कमीशन होता है 100 रुपया. So they make, and most of the Hawala agents are extremely rich. So imagine how much of black money must be going. This is what is known as Benami transaction. Nobody knows how it is. The same Benami transaction happened in the land. Right? So most of the land was, most of the zamindars indulged either in Benami transactions, किसी के नाम पे ले ली प्रॉपर्टी, और ट्रांसफर्ड देयर लैंड टू फैमिली मेंबर्स. मैंने प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, फाइन, बट डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रख लिए. वो प्रॉपर्टी आपके कुछ काम की नहीं है. अंडरस्टैंडिंग? यू रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स आर विथ मी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. सो प्रॉपर्टी मिलने से ही फायदा नहीं होता. सो दिस डिड नॉट चेंज द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर. टेल मी whether you understand this thing. This did not change the operational aspects of
एग्रीकल्चर। मतलब एक्सेस लैंड मैंने आपके नाम पे कर दी, सो नाउ यू आर द लैंडलॉर्ड, बट जो टेनेंट था उसके लिए आज भी वो टेनेंट ही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट चेंजिंग द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर। अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट, मेरे पास लैंड ही नहीं है ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट, lack of social consciousness, lack of social consciousness among the tenants. Because tenants were unorganized and ignorant of legal and constitutional processes. Unorganized, अगर पता भी है तो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और इग्नोरेंट ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। Lack of strong political will, because there was large gap between policy, comma legislation and implementation. In many states, it took huge time for bill to become an act. For a bill to become an act. स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। देखो, जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें कैडर सिस्टम है, याद रखना। जो सेंट्रल सब्जेक्ट है उसमें कैडर सिस्टम नहीं है। सो स्टेट सब्जेक्ट्स क्या है? लैंड, IAS, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, IPS, फाइन। पैरामिलिट्री इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, इसलिए CISF, CRPF। इनकम टैक्स या GST इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। सो इसलिए कैडर सिस्टम नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ 2 ही है, 3 है। फॉरेस्ट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। सो इसलिए, बट स्टेट, ओरिजिनल स्टेट था, इंदिरा गांधी के समय कॉन्करेंट आ गया। सो देयर इज अ थर्ड, IFS, फॉरेस्ट सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज, 3 ही है। सेंट्रल सब्जेक्ट है। जो स्टेट्स कह रहे हैं कि वी विल नॉट इम्प्लीमेंट, दे कैन नॉट डू सो। कोई फायदा नहीं उसका। इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। फॉरेन सब्जेक्ट नहीं होता। हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, यस। सिटीजनशिप इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। स्टेट्स जो कह रहे, विच आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट, ये कुछ नहीं, पब्लिक को बहकाने वाली बात है। दे विल हैव टू इम्प्लीमेंट। एंड से जितना डर था उतना नहीं है एक्चुअली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का। व्हेन द पॉलिटिकल लीडर्स हैव क्लैरिफाइड, इतना डर नहीं है। इट इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो ली जाती है। नेक्स्ट, it has been seen that they were successful only in the left ruled states. And that too where competition with the other parties was high. Example, Kerala and Bengal.
बंगाल. Next, bureaucratic corruption. Corruption, because most of the highly placed officers were themselves landlords. Highly placed officers were mostly landlords. सी अभी अभी लास्ट 10-15 साल में अच्छे हो गए सर्विसेज. यूपीएससी पहले से ही अच्छा था, पर पहले स्टेट सर्विसेज में कैसे अपॉइंटमेंट होते थे? मिनिस्टर्स ने कह दिया अपॉइंटमेंट कर लो, है तो वही तहसीलदार बन गया, वही एसडीएम बन गया, वही एक्साइज में चला गया. इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द फोन कॉल. हाँ, हायर जुडिशरी में है, लोअर में नहीं है, हायर में है अभी भी. हायर में अभी भी है. यस, इट इज सेड दैट 104 फैमिलीज के बीच ही पूरी जुडिशरी इंडिया में कंट्रोल्ड है. करप्शन अलाउड that surplus land which was distributed was mostly barren and uncultivable. And the last point, with the emergence of new agricultural technology, the focus again shifted towards the importance of large farmers. Because only they could afford high agricultural inputs. आपको जाने से पहले मैं एक असाइनमेंट दूंगा, जब भी टाइम मिले तब not this one. There is a lady, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है. It will revise your this thing. लैंड रिफॉर्म्स कभी भी जीएस में this इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, लैंड रिफॉर्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है. सो दिस इज़ वेरी गुड. जो मेरी बैनर्जी वो सबकी केस स्टडी, इट इज़ फ्रॉम हियर, इट इज़ नॉट फ्रॉम खुल्लर और एनीथिंग, फाइन. और दूसरा जो आज के लिए है, विच आई जिसके मैं नोट्स दूंगा, एंड माई नोट्स आर फ्रॉम हियर. ये आज ही सुन लो. इट इज़ वेरी गुड डिस्कशन, इन डेप्थ. ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया. सो हमारे टॉपिक्स अब जो 4 बचे हैं, ब्लू रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, दे आर वेरी इजी. एंड एग्रीकल्चर
agroecological regions, agriculture productivity. So this is a very good article on blue revolution. Reason is why this article, because blue revolution is an old concept जिसमें change have been there. Green revolution is an old concept जिसमें there has been change, evergreen revolution. White revolution अभी भी पुराना है 3 phases में. That is phase 1, phase 2, phase 3, ऑपरेशन फ्लड. सो जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वो व्हाइट रेवोल्यूशन से आएगा, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वो ग्रीन रेवोल्यूशन से आएगा, क्योंकि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है ये किसी को ही नहीं पता. फाइन. सो you see the question which comes on the first green revolution, whether it is GS, whether it is optional, it is same. ये green revolution is not entirely success, not entirely a failure, it is a mix. And lastly जो question आएगा it is green, इस पे नया आएगा because कब की न्यूज है ये 2019. Why? Because our prime minister, our vice president has said that we will be taking blue revolution to the hinterlands, that is to the interior region. And uska reason is because as per Neel Kranti mission we have to triple the fish production by 2020. So usme kya hai, what is the difference between the old blue revolution and Neel Kranti mission is the focus is only on mechanical and technological upgradation, processing and marketing. 3 नई चीजें हैं. And you should know बीजेपी गवर्नमेंट का फेवरेट है ब्लू रिवोल्यूशन. जब भी कांग्रेस आती है तो ब्लू रिवोल्यूशन को पीछे छोड़ा जाता है, जब भी बीजेपी आती है तो ब्लू रिवोल्यूशन को लिया जाता है. सो 2014 से फिर से ब्लू रिवोल्यूशन. या फिर इफ यू डोंट वांट दिस देन एटलीस्ट ये कर लो, बिकॉज मेरा जो आंसर है इट इज बेस्ड ऑन दिस एंड सम डू दिस. उसी आर्टिकल को शॉर्ट करके दिया है. Taking blue revolution to India's hinterland. So there will be direct question, how you can take blue revolution to the hinterland. What do you mean by hinterland? To rivers, to lagoons, to lakes. Fine. It is the same article that Insight has typed and given it to you. At least do this article. Fine. So we'll meet on Monday.